आप सब लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2020 क्यों एक बुरा साल बीता है, इसमें क्या क्या बुरा हुआ है, मतलब क्या क्या मिस हैपनिंग्स हुई हैं, क्यों इस ईयर को द ईयर ऑफ द रैट कहा जा रहा है और 2020 को क्यों सब लोग क्यों सहमे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। So 2020 is the year of the rat. According to Chinese astrology, people in this zodiac year are believed to offend Tai Sui, the god of age, and incur his curse. It is believed to bring nothing but bad luck. So, what does 2020 mean spiritually? So, angel number 2020 tells us to be prepared for what is coming our way. Our guardian angel is telling us about the changes that are about to enter our life, and we need to be prepared both mentally and physically for it. जी हाँ दोस्तों, 2020 एक बहुत हेल ऑफ अ ईयर इज गोइंग टू बी और बहुत ही टफ होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। आधा तो हमने आधी जंग जीत ली है, आधी बाकी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में आया था, मिड ऑफ दिसंबर 2019, लेकिन पर जो इसका अपने चरम सीमा, अपने चरम पर, अपनी पीक पे पहुंचा वो 2020 में पहुंचा। और जो इसने तबाही मचाई है, मतलब जो लोगों के अंदर इसका भय है, मतलब पूरी दुनिया को इसने गिरफ्त में लिया, उससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। तो इसके ऊपर ज़्यादा अपना समय वेस्ट ना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मज़े में रहें। तो अब नंबर 2 पर आते हैं, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। तो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जून 2019 में यानी कि समर्स में स्टार्ट हुई थी, लेकिन पर उस टाइम ये इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी जितनी 2020 में आकर फैल चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने थे जब इसने अपना पूरा प्रकोप दिखाया और ये बहुत ही ज़्यादा लेवल पर फैली और इसने 18.6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डिस्ट्रॉय कर दिया। 1 बिलियन एनिमल्स आर एस्टिमेटेड टू बी किल्ड एंड सम एंडेंजर्ड स्पीशीज आर बिलीव्ड टू बी एक्सटिंक्ट। और 306 million tons of carbon dioxide was emitted into air, which reduced the air quality to the worst. तो मतलब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक थी। आप फोटोज देख सकते हैं कि कितनी भयानक फोटोज हैं और क्या क्या हुआ है। मतलब कौन यार, कंगारूज और कोआला से किसको दिक्कत हो सकती है यार, मेरी तो समझ के बिल्कुल परे है। पर फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे फॉर ऑस्ट्रेलिया and everything would be good. So next, coming to number 3, that is Ukrainian jetliner crash, which happened on 8 January 2020. The Ukrainian International Airlines flight 752 was shot down by Islamic Revolutionary Guards Corps, which was carrying 176 passengers, including the crew. All were killed, and it was a very sad news on the 8th of January, and it was due to the growing tensions between the US and the Iran, which was shot down by automatic missiles, and which was a very great loss for everybody. Now coming to number 4, that is devastating floods in Indonesia. There around water equivalent to 72,000 Olympic-sized swimming pools came pouring down on Jakarta on the new year, on the first day of New Year, that is January 1. Jakarta's land is sinking at a rate of 6.7 inches per hour, which is the fastest in the world. It's a very shocking fact, guys. Now coming to number 5, that is communal riots in Delhi, which started in December and are still ongoing as a result of the CAA and NRC Act passed by the present government, and many are protesting against it. That's why there were communal riots in Delhi. Shaheen Bagh everybody is well known of it. So it was not at all good, but what can we do? Coming to number 6, that is Tal volcano eruption. It erupted for around 1 week. It started on 12 January and ended on 19 January 2020. You can have a look at the pics what happened at that place. And around 17-kilometer areas was the danger zone, was declared as the danger zone because of this volcano, and many people were affected because of this eruption. Now coming back to 7th, that is Kobe Bryant's death, and his 9 people were on board, including the retired NBA basketball player Kobe Bryant, who is widely regarded as one of the greatest player of all time. His 13-year-old daughter Gianna, baseball coach John Altobelli, 5 other passengers and the pilot. All 9 people were killed on the helicopter crash that took place on 26 January 2020, which is very sad news. So now number 8, earthquakes in Turkey and Caribbean, which took place on 24 January and which displaced many people. Many people died, many people were injured, and many were rendered homeless.
This earthquake is also known as the Alazig earthquake. It on the Richter scale it was around 7 to 8 and and it lasted for around 40 seconds, which is a very high time. Now coming to number 9, that is the locust attack. तो locust attack को सिंपल भाषा में कहेंगे ये जैसे हम ये टिड्डी जानते हैं सभी, हाँ, तो ये इनका अटैक जून 2019 से ही चल रहा है। ये साउथ अफ्रीका की तरफ से आई है ये, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है इन्होंने। और तो मैं इनके उसमें एक बात कहना चाहूँगा कि हम तो यहाँ घर से बाहर भी निकल पा रहे हैं और ये टिड्डी वर्ल्ड टूर पे निकली है दोस्तों। ठीक है, तो फिर ये मतलब फसल को खराब कर रही है, मतलब सब कुछ अफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से, ग्रीनरी खत्म हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, चीज़ है जिसका मैं मतलब कुछ कर नहीं सकते हम क्या। तो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द गैस प्लांट एक्सप्लोजन इन लेगोस नाइजीरिया। मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही भयावह स्थिति क्रिएट हो गई थी उस टाइम। ये 15 मार्च 2020 को ये घटना हुई थी, जिसको हम अबूल अर्डो एक्सप्लोजन भी कहा जाता है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक ये इमेजेस हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदायक हैं। तो कमिंग टू नंबर 11, दैट इज ओलंपिक्स पोस्टपोन्ड। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पोस्टपोन्ड हो गए हैं 24 जुलाई से 9 अगस्त तक। ये पहले इनका शेड्यूल था, जो कि अब 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 में ये रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। तो एवरीवन वाज वेटिंग फॉर इट, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट हैपनिंग दिस ईयर। तो नंबर 12 पे आता है आईपीएल सस्पेंडेड। आईपीएल सस्पेंड हो चुका है टिल फर्दर नोटिस ऑफ द बीसीसीआई। और हम बहुत सब लोग जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहे थे, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो शायद इस साल ना भी हो पाए, क्योंकि वीकेंड स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं प्लेयर्स को। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट नेक्स्ट ईयर वी विल डेफिनेटली एंजॉय इट, सो स्टे ट्यून्ड। अब आता है कि नंबर 13 पे इरफान खान सर की डेथ हो चुकी है। 29 अप्रैल 2020 को उनकी डेथ हो गई ड्यू टू अ ट्यूमर, कोलन ट्यूमर था उनको, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और उनके 4 दिन पहले उनकी मदर की भी डेथ हुई थी, जो बहुत ही सैड न्यूज़ है। ऋषि कपूर जी की भी डेथ हो गई बिल्कुल अगले ही दिन, यानी 13 अप्रैल को ऋषि कपूर जी की डेथ हुई कैंसर की वजह से, जो कि हमने तो अपने 2 अनमोल रत्न खो दिए, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख की बात है। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। अब बात आती है जॉर्ज फ्लॉयड की। तो मतलब कि इनकी डेथ हो गई एक रेसिज्म के उसमें चलते। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट की बात हो गई है, और यूएस में इसके थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्ट मार्च चल रहे हैं, जिसमें कि यूएस में सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। और लोग बाग ये कह रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर। तो मैं इनको बस ये कहना चाहूँगा कि ऑल लाइव्स मैटर। प्लीज़ अंडरस्टैंड इस बात को समझे और अमल करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने प्रोटेस्टर्स हैं। और अब नंबर 16 पे आते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर। तो उत्तराखंड, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत शॉकिंग फैक्ट है कि देयर हैव बीन 46 वाइल्ड फायर्स हो चुके हैं सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2020, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि कहाँ कितनी सारी फायर्स हो चुकी हैं 2020 में। तो ये बहुत ही खतरे के साइन है और बहुत ही ज़्यादा विचार विमर्श करने वाली बात है। तो अब नंबर 17 पे आते हैं, जो कि है साइक्लोन अम्फान, जिससे कि ये प्रेजेंट हमारा साउथ ईस्ट वाला एरिया जूझ रहा है। इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। ये जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये इतना सब कुछ तबाही मचाई है। ये करीबन बहुत ज़्यादा मतलब 16 मई को ये साइक्लोन फॉर्म हुआ था और 21 मई को ये डिसिपेट हुआ, जिसने ये इतना सब कुछ तबाही मचाई। तो ये मतलब कि आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द गुड कि ये सब कुछ, सारी सिचुएशन सब कुछ अंडर कंट्रोल आ जाए, सब कुछ नॉर्मल जल्दी हो जाए। तो कमिंग टू नंबर 18, दैट इज द विशाखापट्टनम गैस लीक। तो 7 मई 2020 को ये गैस लीक हुई थी एलजी पॉलीमर्स इंडिया में, वाइजैक भी कहते हैं कि वहाँ वाइजैक एरिया में हुई थी, जिसकी वजह से आसपास के एरिया बहुत ही ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए सिचुएशन में पाए गए थे। वहाँ पर 10 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग इस हानिकारक इस पॉइजनस गैस का इंटेक की वजह से हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और इसका मेन रीज़न था कि स्टायरीन गैस के कूलिंग टैंक में एक लीकेज पाई गई थी, जिसकी वजह से ये सारा हैवॉक क्रिएट हो गया था लोगों में।
तो अब ना कमिंग टू, जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हैं, नाउ कमिंग टू नंबर 19, दैट इज मिशिगन डैम ब्रिजेस, यानी कि मिशिगन स्टेट, मिशिगन एक कंट्री है, एरिया है, वहां पर 19 मई को 2 डैम, मतलब डैम टूट गए, बांध बांध टूट गए, और वहाँ का एरिया, उनका सारा पानी, ज़्यादा रेनफॉल की वजह से हुआ था ये, और सारा पानी सिटी में आ गया, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फियर क्रिएट हो गया, फियर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, और बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था। तो ये 2020 में ये हुआ है। और इबोला आउटब्रेक हुआ 28 फरवरी को, इबोला का फर्स्ट केस द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आया। उसके बाद से अब तक टोटल 6 केसेस अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और उनको इबोला पॉजिटिव पाए गए वो। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में अब ये दोबारा आउटब्रेक होना, ये बहुत ही ज़्यादा खराब सिचुएशन है गाइस, वी आर इन अ हेल ऑफ अ सिचुएशन। तो अब इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे हर एक देश जूझ रहा है, इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा गिरती जा रही है स्टेट में, जिसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब 22 पे आता है हीट वेव्स। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पर हीट वेव्स यूं की यूं बरकरार हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा, इस साल बहुत ही ज़्यादा अपना कहर बरपा रही है हीट वेव्स, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो प्लीज़ अपने घर पर रहें, सेफ रहें, जितना ज़्यादा हो सके पानी पिएं। और 23 पे अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस इशू है प्रेजेंट वर्ल्ड में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं। और जो एम्प्लॉयड लोग भी हैं, उनको भी अप टू द मार्क उनकी जॉब नहीं मिल रही है, और जॉब मिली हुई है तो उनको अप टू द मार्क सैलरी भी नहीं मिल रही है, जो कि बहुत सी ज़्यादा गलत बात है। और ये बहुत ही, ये फिर वही इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आ जाती है। हाँ, तो अब एक और बात है कि साइक्लोन निसर्गा इज अबाउट टू हिट महाराष्ट्र। रेड अलर्ट इन मुंबई, थाने, कुर्ला, कोलाबा, वडाला एटसेट्रा मैनी नियर बाय प्लेसेस, वहां पर लैंडस्लाइड्स हो चुके हैं, रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, ट्री कोलैप्स हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। तो अब मैं इतना कहना चाहूंगी, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, बी सेफ। और ये बात, एक बात है, जैसे कि जो हमारे लेबर्स हैं, इनके साथ एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, तो मैं इन्हें भी कहना चाहूँगा, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, तो मैं इन्हें कहना चाहूँगा कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, मतलब अपने चौकन्ना रहें, और बस सेफ रहें, जहाँ वहाँ रहें। ये ऐसे अपने वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने से ये एक्सीडेंट होते हैं, तो प्लीज़ अपनी सुरक्षा, खुद ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और बस इतना कहना चाहूँगी, सेफ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने का। प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज देखते रहें ये वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। नाउ आई टेक योर लीव। जय हिंद, जय भारत।